Ladies and gentlemen, presenting the legendary CEO and CCO of McCann World Group India. Put your hands together for Mr. Prasoon Joshi. Good evening, and now folks, I know that the moment has come where we have the absolutely versatile actor coming and joining us on this stage. You know, I've been given all these lines to say about him, but honestly, we don't need to. We know who's coming and joining us, and sir, I know that you're going to delve in one of the best conversations with him, but I think it's not fair that I get to say his name. I think we should do this together. So when I say Mr. Manoj, you know what you're going to say. Ladies and gentlemen, let's welcome onto this stage at Goa Fest 2024, Mr. Manoj. निवेदित नहीं नरसंहार होगा. So one more round of applause for Manoj ji. And on behalf of everyone here from advertising fraternity, all very dear friends sitting there, and really thank you from the bottom of our heart that you are here today. I know how busy your schedule is and was, and Bhaiya ji right now out there, and you've taken out time to be with us. Really value that, and thank you for that first of all. आपके बहुत फैन बैठे हैं यहाँ पे सब. A lot of people have reached out to me that what kind of questions they have in the mind for you. I think कोई भी, a lot of creative people must be sitting here. I'm sure if you can shout loud and let me know how many creative people are here. So I can't imagine that anybody who is into the business of creativity would not be inspired by what you are. I mean, I salute your craft. I really do, and all of us do. I think there was a time where, you know, nobody has seen someone like you on the screen. And we remember Satya days, and how many times I watched you perform Bhiku Matre. Since then, आज तक हम लोग एडवर्टाइजिंग में एक चीज़ कहते हैं मनोज जी कि कोई नाम से जब एक मेटाफर बन जाता है. अभी कुछ दिन पहले सम क्रिएटिव किड्स वर प्रेजेंटिंग अ स्क्रिप्ट टू मी. इसमें जो ये एक्टर होगा कोई मनोज वाजपेयी टाइप जो एक्सप्रेशन है वो सोचिए आप. सो यू हैव बिकम अ मेटाफर. Now, how does it feel, and what has been the journey from being Manoj Bajpayee to the brand Manoj Bajpayee, the metaphor Manoj Bajpayee? आपने ही फिल्म में कहा था कि भाई अमिताभ बच्चन, you remember that film had that dialogue. Now people use your name like that as a metaphor. First of all, how does it feel, and what has been the journey? If you can tell people here, would be lovely to hear because he's a man of craft and intricate thinking, and that's what we need to. After the cheers you were hearing for Saurav ji when he left, now we need to get into the intricacies of craft with the Manoj Bajpayee. Well, thank you, Prasoon, and thank you all here. Thanks a lot. I was just enjoying sitting
in the wings, what Saurav Ganguly was talking about, Saurav was and is our hero who got us the World Cup, right? But to tell you that I have never worked on this, amazing word called brand, never. This is something which was completely an alien word for me. What I was working on was my passion for the craft, what I wanted to do. And somewhere down the line, I realized that, the industry, either I am wrong or the industry is wrong about me. They were not, they wanted me to do something that they thought is right for Manoj Bajpayee. And I was refusing to fit into their scheme of things. Somewhere I realized that, I left my village, my parents, the comfort of my village house, everything, to do what I wanted to do what my dream has pushed me to do. So the struggle was quite tedious after Satya. Bhikkhu Mahatre that everyone talks about. But very few people know that after Bhikkhu Mahatre, I was still without work. The recognition was far, far higher than the heavier than my purse. The purse which I used to carry used to be empty, almost nothing there. Sometimes I used to borrow money to take an auto rickshaw from one place to a place where interviews were happening, and that started becoming a talk of the town that Manoj Bajpayee, Bhikkhu Mahatre is coming in auto rickshaw to give his interview, to attend the press conference. And then suddenly I realized that is becoming a sell point. And that started bothering me. That I don't want to sell this. I'm here to do something else. I want to be known for my craft. I want to be known for what I do, not about Manoj Bajpayee who's coming in an auto rickshaw. Okay, so all from Satya, when I got such a huge recognition overnight, suddenly, I started feeling that, they are offering me a villain's role, which I never wanted to do, or they are trying to publish me only because I'm coming in an auto to a function or to a press conference. So I had to. So it is, Manojji, you can fall prey to that, because in the art world, it's almost, kind of a reverse snobbery also can be seen as a lifestyle that this guy has chosen to be like this. Did you, when you start getting, of course, financially also, went ahead, and somewhere you have said, I've read that you still feel that middle class life is the most beautiful life. What do you mean by that? Middle class life is such a beautiful thing that you are not expanding your expenditure to fit into a box. You are not expanding your expenditure so that you can buy the same fridge that your neighbor has. Till then, it's fantastic. Middle class has its own disadvantages, because middle class has a very higher sense of envy. Yes. Okay? Because somebody else has I can't take one brand's name here, but if somebody else has a different kind of a fridge, which has a higher capacity, suddenly that becomes the talk of the building. Okay? For me, what is so amazing about being a middle class is that, you live within your capacity, reach. But yeah. And still be real. मनोज, आप ये बताइए कि जैसे आप एक पर्सन हैं और एक आर्टिस्ट हैं, आपके जैसे जो रोल करने वाले हैं, आई डोंट थिंक हाउ मेनी पीपल कैन एक्चुअली प्ले द वे यू प्ले, यू जिसे हम हिंदी में आत्मसात कहते हैं, उतर जाते हैं आप उसमें, यू आर द पर्सन एंड देयर इज नो डिस्टिंक्शन लेफ्ट.
After you played such an intense role, how do you compartmentalize yourself? जब आप घर आते हैं, doesn't it sort of spill over into your behavior with your personal life? क्या दो अलग अलग कमरे हैं जिसमें एक में वो आर्टिस्ट मनोज वाजपेयी रहते हैं और एक में वो इंसान रहते हैं, तो ये दोनों का डिस्टिंक्शन कैसे करते हैं? बड़ा इजी होता है मेरे लिए, क्योंकि मैं आता हूँ एक किसान परिवार से, फार्मर फैमिली से। तो अगर मैं दिल्ली बम्बई के मिडिल क्लास में होता तो एस्पिरेशन होती है टू बी समथिंग बिगर देन व्हाट you are at that point of time. When you are already a son of a farmer and you are traveling thousands of kilometers away from your village, so you are only feeling blessed all the time, and you are still not forgetting. You are uncomfortable in each city because you are from Pahad, you are from mountain. I am from a village. I am a farmer's son. But somehow these small places, small villages have something that you cannot take it out from that man. You cannot take out the mountain. Out of the man. Yeah, you can't take the mountain out of the man. Similarly, you can't take the village out of a person. I mean, I could not. So every time I was reminded of the things that I have left behind. What I left behind was my parents. So every time I visited them, I saw extra wrinkles on their faces. They never thought that they were getting older. I always realized when I visited them that they are getting older, because I was visiting them after 2 years, 3 years, right? That used to humble me down. But that somehow kept on reminding me why I was in Delhi when I was doing theater, why I was in Mumbai when I was doing films or struggling for films, or I was getting a lot of recognition. Every time I was reminded what I have left behind. So I have to compensate it. I have to keep working hard, keep justifying the sacrifices that I have made. So मैं एक बार जब पिक्चर लिख रहा था भाग मिल्खा भाग, सो मिल्खा जी से मैं अक्सर बातें करता था और उसमें आई ऑनेस्टली आस्क हिम दैट जब देश के लिए दौड़ते थे तो कैसा लगता था. सो ही सेड दैट, एंड आई हैव दैट सीन इन द फिल्म, दैट ही सेड जब मैं पहले दौड़ता था तो दूध के ग्लास के लिए दौड़ता था भाई, क्योंकि एक्स्ट्रा दूध का ग्लास मिलता था जो स्पोर्ट्स कोटा में स्पोर्ट्स वाले होते थे. नाउ डू यू थिंक दैट हम इतना महिमा मंडन करते हैं, वी टॉक अबाउट आर्टिस्ट बीइंग फ्रॉम द डिफरेंट वर्ल्ड, आर्ट के कई मूल में भी सर्वाइवल भी है और पीपल डू वर्क फॉर बेसिक सर्वाइवल, और आर्टिस्ट किसी और मिट्टी के बने होते हैं कि वो कुछ और चेज कर रहे होते हैं, या सब एक ही चीज़ चेज कर रहे हैं जिसका नाम सर्वाइवल है. इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन व्हाट यू आर चेजिंग और समबडी आउट देयर इन योर कजन हु इज नॉट एन आर्टिस्ट इज चेजिंग? डू यू सी देयर इज एनी डिफरेंस इन द ड्रीम्स और अ चेज ऑफ दीज टू पीपल? नहीं, मिल्खा सिंह जी ने बहुत अच्छी बात कही. जब मेरे पास ऑप्शन है कि मैं जाकर के किसी फेस्टिवल में, जैसे गोवा फेस्ट हो रहा है और मैं थिएटर बाहर कर रहा हूँ, किसी दोस्त ने आकर कहा कि यार यहाँ पे वॉलंटियर बन जा, तुझे जो है 3 दिन के 15,000 रुपये मिल जाएंगे. तो मैं 3 दिन के लिए आऊँगा, वॉलंटियर हो जाऊँगा, लोगों को अशर करूँगा, बैक स्टेज काम करूँगा, देन आई विल गो बैक टू व्हाट आई एम डूइंग. बट नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन योर जॉब इज़ द रियल थिंग. Here, if I am working as a volunteer, I am not compromising. I am only making sure that the rent and the auto fare and the food is taken care of with this 15,000 आप rupees. humble हो रहे हैं, मतलब जरूर there must be some, जिसे कहते हैं ज्वाला अंदर तो कोई जलती होगी कि नहीं, मुझे एक दिन ऐसा कुछ. What is that? एक दौड़ किस तरफ है? आप आज जो मुकाम हासिल कर चुके हैं, आप आराम से बैठ भी सकते हैं. I mean, how many people can be you? You are an iconic actor of our country. Now you can sit on your laurels and sit, but still, I think what we have seen in OTT right now, the kind of hunger, a kind of intensity with which you are following new and new performances, वो energy, वो motivation कहाँ से? किस चीज़ का motivation? This is, I mean, you are so right. मुझे कभी-कभी लगता है कि ये एक प्रेम कहानी है क्राफ्ट के साथ में, जो ख़त्म नहीं हो रही है. मैं और मेरी वाइफ जो है ना, वो बिल्कुल सही कहती है कि इस आदमी को सिर्फ काम करना है,
चाहे वो कोई भी रोल ला, कोई रोल, अगले एक रोल के बाद दूसरा रोल करना है, तीसरा रोल करना है, इसके आगे सोचता नहीं है। मेरी ज़िंदगी ये जो क्राफ्ट के साथ में एक अमेजिंग लव स्टोरी है। When I get another role which is challenging, I completely get into it. I really don't know what drives me towards it. I think it's the passion for the craft which keeps driving me. I find a challenge, I find something new to discover, I keep going towards that. And whenever there's a gap or there's a leisure time, I feel guilty that I could not give that much of time to my daughter, to my wife, to my parents, you know. That leisure time is a bad time for me because that suddenly reminds me that, you know, I could not give them time. I suddenly got so immersed into doing this role or that role. But till the time I'm into that role, I forget the outside world. I really don't know the outside world exists when I'm doing it. I personally, you know, I was doing this role, I was prepping for this role called, for this role in Gali Guliyan. And one day, my wife crossed me and suddenly she said, have you said something? I said, no. What happened? No, you are talking to yourself since few days. I have realized. Are you preparing for that film? I said, yeah, but I'm not talking to myself. No, you are talking to yourself. So you are taking it a little far. Just take care of yourself. Okay? So, you know, you go that far because this is my instrument. In going that far, how much your personal beliefs or your personal Manoj Bajpayee comes in conflict with the roles you're playing? Or you feel that whatever it is, what convinces you that I should play this role? Do you extend yourself as a person? आपका जो मनोज वाजपेयी है, आपका गांव जैसे का, आप उसको तो यू कांट राइट इट ऑफ, आपका जो बैकग्राउंड है यू कांट राइट इट ऑफ, आपकी जो भाषा है, आपके जो मेटाफर्स हैं, जिस तरह से आप पले बड़े हैं, सब कुछ आप में समाया हुआ है। जब आप कोई रोल करते हैं तो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट भी होता है। कहाँ आपको लगता है कि कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है और आपको लगता है कि रोल जो है मैं सिर्फ मैकेनिकली कर रहा हूँ, ऐसा होता है कभी, इसमें मेरा मन नहीं है, ऐसा होता है? बहुत साल पहले हुआ था और 2 दिन के बाद पता चला कि इस फिल्म का कुछ नहीं होने वाला है। तो मैंने अपने मेकअप मैन को कहा कि वाइट वाइन कहाँ मिलेगी, तो उसने कहा सर बहुत दूर है, मड आइलैंड में शूटिंग कर रहे थे। मैंने कहा चाहे जितनी भी दूर है लेके आओ, शाम को पार्टी करेंगे। क्योंकि वंस यू नो दैट इज डूम्ड, you've done it for money, yes, thinking that yes, okay, it's above average films, कुछ ना कुछ हो जाएगा, काम तो वैसे भी नहीं आ रहा है, तो let's go ahead and give it a shot. But you realize that your decision was completely based on the financial factor. And the director, वो जो है अच्छी अंग्रेजी बोल रहा था, बट उतना काबिल आदमी नहीं है, सिर्फ अंग्रेजी अच्छी बोल रहा था। मेरे साथ बहुत बार हो चुका है कि अच्छी अंग्रेजी बोलने वाला डायरेक्टर मिला, आई रियलाइज दैट यू नो ही इज those were the few examples I can tell you. I realized that English can only be one of the skills. It can't be anything else, you know, it can't be beyond that. नहीं इसमें तो great to hear. I mean, I can tell you when I joined advertising, ऐसा नहीं सोचते थे लोग। आज यहाँ पे जो बच्चे बैठे हैं, these have come from various small towns and grassroots. उस ज़माने में हम लोग बड़े ही अतरंगी माने जाते थे कि ये अलग ही ब्रीड के, देखो ये स्मॉल टाउन से आ गए, हिंदी स्पीकिंग टाइप के, ये कहाँ से आ गए इस प्रोफेशन में, स्मॉल टाउन बॉय मुझे कहा जाता था। तो वो उससे तो हम काफ़ी दूर आ गए हैं आज। या आपको लगता है कि अभी भी भाषाई जो प्रभाव है, या अगर आप अंग्रेज़ी नहीं बोलते हैं तो पहले के मुताबिक अब, जैसे कि हम सुनते थे कि बिटवीन यू नो हिंदी इज़ ओनली स्पोकन बिटवीन एक्शन एंड कट, उसके बीच में ही हिंदी बोली जाती है, उसके पहले और बाद में अंग्रेज़ी बोली जाती है। आपको लगता है बदला है वो? 2 चीज़ें हैं, 2 बहुत ही कमाल के हम लोग शिफ्ट से जा रहे, बहुत कमाल का ट्रांजिशन हो रहा है एंड इट इज़ प्रेवलेंट एक्चुअली। अभी हम लोगों के समय में इंग्लिश जो था एक एलीट लैंग्वेज था,
वसंत विहार लैंग्वेज था दिल्ली में। या मुंबई में पेडर रोड, इस तरह का लैंग्वेज था। अभी इतने सारे इंटरनेशनल स्कूल को गवर्नमेंट्स ने कुछ 15 सालों से 20 सालों से लाइसेंस दे दिया है कि हर मिडिल क्लास जो का एस्पिरेशन था कि अपने बच्चे को इंग्लिश में पढ़ाऊं, क्योंकि वो खुद ही हिंदी मीडियम में पढ़ा होता था, तो उसको इतना कॉम्प्लेक्स होता था कि वो उसने अपने बच्चों को भारी फीस दे करके इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना शुरू किया। उसका जो फ्लिप साइड ये हुआ कि आज शूटिंग पे नो चाइल्ड और नो यंग मैन और अ गर्ल हु आर असिस्टिंग, और जो अप्रेंटिस हैं या ट्रेनी हैं ऑन द सेट, वो कोई भी हिंदी लैंग्वेज नहीं जानता है, कोई भी देवनागरी में नहीं लिख सकता है, सबके सब रोमन में लिखते हैं। और किसी को, और मुझे रोमन नहीं समझ में, मुझे रोमन में बहुत प्रॉब्लम होती है, बिकॉज आई एम फ्रॉम मिडिल क्लास एंड हिंदी मीडियम। रो पड़ता है मन। हाँ। तो उनकी रोमन वाली मैं पढ़ नहीं पाता हूँ, तो अभी स्ट्रिक्ट मैंने कर दिया है कि अगर आप रोमन में लेके आओगे तो मैं शूट के लिए बाहर नहीं निकलूंगा अपने वैन से। तो थोड़ा सा उनको डर देता हूँ। जब मैं डर देता हूँ तो पता ये चलता है कि वो शूटिंग में पूछ रहे होते हैं कि कोई हिंदी लिख सकता है क्या। Then they find one girl or boy who somehow can manage to write in Hindi. Somehow. Their matras are all wrong everywhere. But ये एक स्ट्रगल है आज की तारीख में, बट आई नो दैट इन द कमिंग ईयर्स इट इज गोइंग टू चेंज। जी बिल्कुल, मैं आपको एश्योर कर सकता हूँ फ्रॉम द प्रोफेशन आई एम इन एंड ऑल्सो यहाँ पे जब बैठे, आई थिंक द पीपल हु आर कमिंग टू दिस प्रोफेशन टुडे वर्सेस व्हेन आई जॉइन, आज जो लोगों में बिल्कुल भाषा से ज़्यादा परे देखने की आदत शुरू हो गई। बिल्कुल हो गई। जस्ट टू इंटरप्ट यू, दूसरा साइड ये है कि लैंडस्केप ऐसा चेंज हुआ है कि देर इज़ वन पॉपुलेशन हु इज़ नॉट दैट मच इनटू हिंदी, क्योंकि वो इंग्लिश मीडियम से आ रहे हैं, वो मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास के बच्चे हैं। लेकिन दूसरा साइड ये भी कि एक्सेप्टेंस इतना बड़ा है, अगर ये एक्सेप्टेंस नहीं होता प्रसून, तो पंकज त्रिपाठी और नवाजुद्दीन आज बहुत बड़े स्टार नहीं होते, यू नो। सो दिस इज the acceptance among the English medium, English speaking or Telugu speaking or Hindi speaking or say Bhojpuri speaking, Marwari speaking, Gujarati speaking, all of these people, all that audience have become so open because of OTT. Yes. Now they have seen something else beyond Hindi cinema, beyond the theater viewing. They have seen something else and they are addicted to it. मनोज जी, जो एक चीज़ और मेरा ऑब्जर्वेशन है यार, आप उसके माहिर हैं तो आप बताएंगे कि हम लोग जब थिएटर जाया करते थे छोटे शहरों में, फ्राइडे को पिक्चर लगती थी, बच्चन साहब की कोई पिक्चर देख के निकलते थे तो चौड़े से चलते, थोड़ा साइकिल स्टैंड में साइकिल जरा निकालते रहे, सबकी ज़बानें बदली हुई थी, तो एक बड़ी स्क्रीन पे एक भव्य कुछ देख के आते। आज समथिंग यूज टू लुक अप टू, यू लुक डाउन अपॉन। अब छोटे छोटे स्टार दिख रहे हैं। आपको लगता है कि रिलेशनशिप जो है वो स्टार्स के साथ या लेजेंड्स के साथ आज बदली है और वो डिफरेंट किस्म की रिलेशनशिप है? आज आप ये जानते हैं कि वो क्या खाते हैं, क्या पहना, आज बीमार थे कि नहीं थे? आपको लगता है कि काफ़ी ज़्यादा एक राब्ता बन गया है, एक मोर क्लोजनेस आ गई है, एंड इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ रिलेशनशिप। तो यस्टरयर्स जो लार्जर देन लाइफ स्टार्स थे वो अब बनेंगे या नहीं बनेंगे, ये आने दिनों में रिश्ता बदल गया है कोई? वो रिश्ता बदल चुका है, बिल्कुल बदल चुका है। आज मेरे ख्याल से जो लास्ट ऑफ द स्टार्स हम देख चुके हैं अभी, और मुझे नहीं लगता है कि अब उस तरह के स्टार्स आएंगे। अभी दूसरे तरीके के स्टार्स आप क्रिएट करेंगे, बिकॉज सिनेमा और OTT और टेलीविजन, दे कैनॉट रन विदाउट देयर स्टार्स। They have to create their own stars of different kind. But the kind of stars that you have seen till now, they are gone. They are they were the last ones. Shah Rukh, Salman, Amir, Akshay, Ajay, they were the last ones, and we have seen them
But now, with the changing time, with the digital revolution, the stars or the audiences stars are going to change. They will be of different kind. You know, I mean, the names, look at them. The OTT has changed the game completely. Completely. Nobody, I mean, even Pankaj didn't think that, you know, people will take so much liking for whatever he will do on the screen. Or Nawazuddin Siddiqui, coming from Muzaffarnagar and suddenly becoming a favorite, household favorite. These are the kind of stars who people would look up to. People, the stars who are amazing on the screen, but off screens, real. People, the stars people can relate to. You know, फिर क्या जो ये बॉलीवुड या फिर हमारी फिल्म इंडस्ट्री की पिक्चरें कई तरह की सब्जेक्ट सब चल नहीं रहे हैं थिएटर में, क्या आपको लगता है ये OTT की वजह से लोगों को ये लगता है कि ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट देखने के लिए घर से जाने की क्या ज़रूरत है, मैं घर में देखूंगा ये सब्जेक्ट, दिस इज़ गुड इनफ फॉर मी टू वॉच ऑन OTT. सो क्या अब फिल्म इंडस्ट्री के सामने जो एक चुनौती आई है, कई फिल्में नहीं चल पाई हैं, is it a time to learn for the film industry that a certain kind of cinema is the kind of cinema they should figure out for which people will get out of their homes to watch, and there is a certain kind of cinema which they will watch on their at home on OTT. तो क्या ये हर तरह की फिल्में जो नहीं चल पाएंगी अब थिएटर पे, ये एक चुनाव करना बहुत ज़रूरी होगा? देखिए, आज आपको बताऊं, एक मैं एग्जांपल देता हूं. मेरा खुद का ये नहीं है, जो मैंने what I have read, you know, all over, is that Lapata Ladies, you know, has far more views on OTT than Animal. So it says so much. So it also says that people didn't get out to watch Lapata Ladies in theater. They waited for that film to come on OTT. Okay? किसी के लिए मैं घर से जाऊंगा और कोई मेरे घर आएगा. घर आएगा. ये अलग-अलग है. ये audience के लिए, because audience, you have to understand, audience is the consumer and they are deciding where they are going to pay how much. It all boils down to that. कि इसके लिए मैं इतना खर्चा करूंगा और इसके लिए मैं इससे ज़्यादा खर्चा करूंगा. वो एक्सपीरियंस आपको इंश्योर, और वो एक्सपीरियंस वो जब ट्रेलर आता है तब वो देख लेते हैं कि ओके, आई विल गेट आउट एंड आई विल स्पेंड दैट मच एंड वॉच दिस फिल्म, एंड फॉर दिस आई विल वॉच इट एट होम विद माई फैमिली, और even if it is not with my family, it's all right, but I can spend that much. Since we talked about stars, एक पर्सनैलिटी राइट्स की बात आपने सुनी होगी, ये चली है कि भाई जो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है, आपकी जो इमेज के कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनको भी राइट्स होना चाहिए कि वो आपका स्टाइल है, और आपके स्टाइल को अगर कोई कमर्शियली यूज़ कर रहा है तो should not be allowed to do. And you would have heard Mr. Anil Kapoor has talked about it, Bachchan Saab has talked about it, and I think Jackie Shroff has also talked about it. उन्होंने जैकी जी ने भी बात की है. So do you think ये पर्सनैलिटी राइट्स की बात, इस पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू? देखिए, अगर कोई दूसरा कमा रहा है किसी की नकल करके, तो जिसकी नकल कर रहा है उसको भी थोड़े पैसे दे दो यार, है कि नहीं? मतलब ये तो बनता है ना, ये तो बनता है. ये मतलब दिस इज जस्टिफाइड. आई मीन, हाउ मच you should give it to that person is something that you can, you know, debate, you can discuss. That is open for all kind of discussion. मुझे इसलिए अभी तक ज़रूरत नहीं पड़ी है क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे परफॉर्मेंस हैं, रोल्स हैं, उसी की नकल कर सकते हैं. मुंबई का किंग कौन, कह के लेंगे, है ना, तो निवेदन नहीं नरसंहार होगा, इसी तरह के करेंगे तो प्रोड्यूसर जाने, वो प्रोड्यूसर जो है वो पर्सनालिटी राइट्स कर लेता रहेगा. सो एक ताली तो आपके लिए बनती है कि मनोज वाजपेयी जो हैं वो कभी मनोज वाजपेयी नहीं होते हैं, वो कैरेक्टर होते हैं जो वो प्ले करते हैं.
मनोज जी, हम यहाँ पे क्रिएटिविटी में की जब बात करते हैं, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हियर वुड हैव, आई एम सॉरी आई कुड नॉट कम अर्लियर हियर, एंड आई एम श्योर दैट यू वुड हैव स्पोकन अ लॉट अबाउट एआई एंड हाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज गेटिंग इन द वर्ल्ड ऑफ क्रिएटिविटी. समवेयर इट शुड कंसर्न और इट माइट कंसर्न पीपल लाइक यू. अगर मनोज वाजपेयी बनकर तैयार होकर बिना आपकी उपस्थिति के डायलॉग डिलीवर करता हुआ आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा, वो मनोज वाजपेयी जिसके किसी भी काम करने में आपका कोई योगदान नहीं रहा, वो आपके डेटा से बना हुआ मनोज वाजपेयी है जो स्टडी कर चुका है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने उसको रिप्रोड्यूस किया है. ऐसी स्थिति की कल्पना से आपको भय नहीं लगता? डोंट यू फील, कुछ चिल्स नहीं होते कि ये कैसी स्थिति आ जाएगी कि आई वुड नॉट बी रिक्वायर्ड बट द ब्रांड मनोज वाजपेयी विल बी रिक्वायर्ड, द स्टाइल मनोज वाजपेयी वुड बी रिक्वायर्ड एंड इट वुड हैव इट्स ओन एंटिटी सैंस यू. आपके बिना उसका अपना एक अस्तित्व होगा. मैं बोलूँगा तो थोड़ा सा कंट्रोवर्सी होने वाला है. एआई से मुझे डर नहीं लगता है सर. देखिए, एआई एक हद तक कर सकता है कि अरिजीत की कोई गाना है, उसको मोहम्मद रफ़ी किस तरह से गाते वो कर सकता है. लेकिन बीकू महात्रे में और सरदार खान में डिफरेंस एआई नहीं कर पाएगा. ये एक्टर ही कर सकता है. वो एक्टर का अपना एक्सपीरियंस, एक्टर की अपनी स्टडी ऑफ द कैरेक्टर. एआई में तो जो डेटा आप डालते हो उसी बेसिस पे वो लेके आएगा. लेकिन वहाँ तो डेटा मनोज वाजपेयी ने डाला ही नहीं हुआ तो घंटा लेके आएगा वो. मैं आपको 3 गैंगस्टर के नाम गिनाता हूँ जो मैंने किए हैं. मैंने 3 गैंगस्टर के नाम गिनाता हूँ जो मैंने किए हैं. एआई को दे दीजिए, बोलिए कि डिफ्रेंशिएट करके बता दे. बीकू महात्रे, सरदार खान और जुबैद खान, मेरे ख्याल से इसका शूट आउट एट वडाला का. शहनशाह की गली में आके उसका पता नहीं पूछते, गुलामों के झुके हुए सर खुद ब खुद रास्ता बता देते. तो आप कैरेक्टर स्टडी करते हो, आप जॉनर को स्टडी करते हो, आप डायरेक्टर के विजन को देखते हो, आप पूरा का पूरा स्क्रिप्ट देखते हो, उसकी सोशियो इकोनॉमिक पूरा बैकग्राउंड देखते हो और सारी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप देखते हो. उसके बाद से आप कैरेक्टराइजेशन करते हो सर. जब एआई कैरेक्टराइजेशन खुद करना शुरू कर देगा बिना डेटा के, तब एआई को मानूंगा मैं. नहीं तो एआई मनोज वाजपेयी को रिप्लेस नहीं कर सकता, नवाजुद्दीन को नहीं कर सकता, इरफान को नहीं कर सकता. This is I think superb. I mean, I think all the creative people out here would feel assured that the fact that how unparalleled and how unique you are. And yes, there could be something done which could be your style. A lot of people tell me that, and it has been given a demo to me also on the fact ChatGPT and all, that आपके स्टाइल का देखिए ये पोइट्री ऐसे होगी एंड शुड इट स्केयर यू. दिस इज द योर स्टाइल ऑफ राइटिंग यू मोस्टली यूज. मैं कहता हूँ, मैं अपने इंटरव्यूज में भी कहता हूँ कि आई यूज, हम लोग पहाड़ की अभी बात कर रहे थे, मैं जनरली लिखता हूँ तू धूप है झमसे बिखर, तू है नदी हो बेखबर. तो धूप का मैं इस्तेमाल बहुत करता हूँ, धूप के मकान, बिकॉज आई हैव बीन ग्रोन अप सीइंग सन एंड शेडो विच इज देयर पार्ट ऑफ माई सबकॉन्शियस. बट उस धूप को इधर उधर इस्तेमाल करके, उस दिन एक साहब थे, एक ऐसा ही सेशन था, तो उन्होंने गुलजार साहब के स्टाइल ऑफ राइटिंग को डाइसेक्ट किया और बोला कि ये गुलजार साहब का विली निली, दिस इज द वे ही राइट्स, एंड ही चोज सम मेटाफर्स विच ही यूजेस. एंड जब वो पढ़ रहे थे लाइनें, तो सब उस समारोह में जो बैठे थे आप तरह के लोग, सब हंस रहे थे, बात बात पे हंसी आ रही थी लोगों को. तो आफ्टर सम टाइम आई टोल्ड हिम, आपने देखा एआई ने क्या किया आपके लिए? गुलजार साहब जो बेहद संजीदा आदमी हैं, आपने उनको हास्य रस में बना लिया. The people smile and people feel goosebumps listening to his poetry. Now you're listening to him and you're smiling and laughing and cracking jokes. This is what happens with, but I tell you with all honesty, I am not underestimating AI. AI is always evolving.
And but what is reassuring for all of us here, and especially the creative people, that there is nothing to fear. It is you, and you are unique and unparalleled, and that will not be replicated. But you have to be Manoj Bajpayee. At the end of the day, AI will be used very creatively by human beings, human mind. So we should be rest assured that it's not AI who will be using humans, it will be humans who will be using AI, and that is the core of it. मनोज जी, एडवर्टाइजिंग की बात, हाँ ये सब लोग हैं, तो any ad which recently you watched which you liked or anything? आज मेरे एड्स ज़्यादातर प्रसून जी क्या होते हैं कि वो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होते हैं, और बिकॉज जो डायरेक्टर्स होते हैं या क्लाइंट होते हैं, दे एक्सपेक्ट परफॉर्मेंस फ्रॉम मी. सो ऑल द ब्रांड्स दैट आई एंडोर्स, देयर स्क्रिप्ट्स आर वेरी परफॉर्मेंस. जैसे कि अभी हाल फिलहाल में एक बहुत ही टियर 2 टियर 3 के लिए मैंने कोल्हू बेल्क सरसों तेल किया था, और उसके लिए भी परफॉर्मेंस चाहिए था उनको. अब अमेज़ॉन फ्रेश के लिए मैं करता हूँ तो महंगा पड़ेगा, तो दैट हैज़ बिकम अ हाउस होल्ड. कल मुझे बच्चे मिलते हैं, कहते हैं अंकल महंगा पड़ेगा, तो तो यू नो, सो व्हाट आई लाइक अबाउट इट दैट कि मैं जो सरसों तेल से भिक्खू म्हात्रे का मेल कैसे होता है? उसी भिक्खू म्हात्रे का ही मेल हो सकता है, मनोज बाजपेयी का ही भी मेल है, क्योंकि मेरे घर में सारे खाने सरसों के तेल में बनते हैं. और अमेज़ॉन फ्रेश से मैं सारी की सारी सब्जियां वगैरह सब कुछ मंगाता हूँ, और उसे सब सिर्फ बेच रहा हूँ. मैं ऐसे कह रहा हूँ, बेचना पड़ता है सब. That's great. I think I often say that there is no distinction for an artist. When you doing work, it is there in front of you. And we were just talking about this. There is no condescension in him, no hierarchy in him. He said, मैं जब कैमरे के सामने होता हूँ तो मैं कर रहा होता हूँ, मुझे क्या पता ये क्या है, मैं तो हो गया हूँ वो चीज़. तो जब आप वो चीज़ हो गए हैं, तो आप विशाल हो गया सनम का, तो फिर क्या फिर कोई दिक्कत नहीं है. बिकॉज यू हैव वंस यू सरेंडर योर सेल्फ टू द जॉब और टू द कैरेक्टर, चाहे वो ब्रांड के लिए ब्रांड है, या फिर वो सिनेमा में स्क्रिप्ट का एक कोई कैरेक्टर है, या फिर ब्रांड के स्क्रिप्ट में दूसरा कैरेक्टर है, इट्स ऑल द सेम. बस आपकी जिम्मेदारी ये होती है कि यू हैव टू बी कंप्लीटली इमर्स्ड इनटू इट. घनश्याम जब मैं करता हूँ तो महंगा पड़ेगा जो मैं कर रहा हूँ, मैं उसको गैलरी नहीं प्ले कर रहा हूँ. घनश्याम के कैरेक्टर को बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग ये कोशिश नहीं कर रहे हैं कि ये सेल कर रहे हैं, बट वो घनश्याम जितना बढ़िया बनेगा उसी हिसाब से जो है उनके साथ सब लोगों के जितने भी टारगेट हैं पूरे होंगे. एट द एंड ऑफ डे इस विद द कैरेक्टर आपको प्ले करना है. एब्सोल्युटली मनोज जी, बट विद दिस इंटेंसिटी यू वर्क. हमने एक फिल्म की थी साथ में, मैंने गीत लिखे थे चिट्टगोंग. जब ऐसा, यू आर वेरी एक्साइटेड अबाउट इट, आपको बहुत पसंद थी, जब वो कहीं किसी के जिक्र में शुमार नहीं होती, या पीपल डोंट इवन नो हाउ मेनी पीपल हियर वुड हैव वॉच्ड द फिल्म. नाउ हाउ डू यू फील आफ्टर सो मच ऑफ हार्ड वर्क एंड लव यू पुट इन समथिंग, इट डजंट गेट रिकॉल्ड? उस बच्चे के लिए, उस क्रिएशन के लिए, उस कृति के लिए आपको कितना दर्द होता है? दर्द नहीं होता है, क्योंकि वो ऑडियंस ने नहीं याद रखा. आपके बच्चे को आपका पड़ोसी तवज्जो नहीं दे तो आपका प्यार उस बच्चे के लिए कम नहीं हो जाता है, उल्टा बढ़ जाता है. ये हमने उसके लिए जान खपाई, हमने उसके लिए पूरी मशक्क़त की, हमने पूरी जी जान से जो उसको परफॉर्म किया. हाँ, लोगों तक नहीं पहुंची बात, लेकिन आपके जैसे मेरे माँ बाप के 6 बच्चे और सब अलग अलग मुकाम पे, लेकिन मेरे माँ बाप के लिए जितना मनोज बाजपेयी प्यारा था उतने ही प्यारे उनके जीते जी मैंने देखा. जिस बुक लेकर मेरी शिकायत भी रही कि और सारे बच्चों को उनसे शिकायत रही कि नहीं आप उनको ज़्यादा प्यार करते हो, आप उनको ज़्यादा प्यार करते हो, आप उनको ज़्यादा प्यार करते हो. मेरे माँ बाप कहते रहे मेरे लिए मनोज से लेकर चिंटू तक सब बहुत प्यारे हैं. और बात सही है, ये राज कपूर साहब ने कहा था. राज कपूर साहब को किसी ने कहा कि भाई मेरा नाम जोकर चली नहीं, लेकिन बाकी जो चले इसमें आपका सबसे प्यारा कौन? उनका मेरा नाम जोकर मेरा बहुत प्यारा है. उन्होंने तो कहा कि ये तो सबसे कम चली हुई फिल्म है.
राज कपूर ने कहा कि ये मेरा बच्चा अच्छा नहीं कर पाया, बाकी तो सब इंडिपेंडेंट हो गए, लेकिन ये मेरा बच्चा अगर अच्छा नहीं कर पाया तो ये मेरा सबसे प्यारा है, मैं इसको दिल के करीब रखता हूँ, मैं इसका ख्याल रखता हूँ. सो दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द क्रिएटर एंड द क्रिएटिव. एब्सोल्युटली वंडरफुल आंसर. मनोज जी की अगर आप लाइफ को स्टडी करें एंड आई मीन इट्स सो वंडरफुल टू नो हिम. ये कोई मामूली इंसान नहीं है, इनकी जो जर्नी है बहुत ही इंटेंस है. इनकी लाइफ में पोइट्री का बहुत रोल है और आपने कहा भी है कि आपके टीचर्स आपको कविता पढ़ने के लिए कहते थे फॉर गेनिंग कॉन्फिडेंस. तो यहाँ पर सारे लोग चाहेंगे कि एक कविता आपके सस्वर आपसे सुने तो बड़ा. जी, मैं जानता था कि एक कवि महोदय जो है मॉडरेट करने वाले हैं, तो कविता जरूर पढ़ने के लिए बोलेंगे, तो मैं तैयारी से आया था. ये जो कविता है, इन 5th स्टैंडर्ड देयर वाज अ पोएम इन आवर टेक्स्ट बुक रिटन बाय लेट श्री हरिवंश राय बच्चन जी. तो ये पहली बार मैं स्टेज पे गया था और मेरे क्लास टीचर ने कहा था कि मैं उस क्लास को रिप्रेजेंट करूंगा एलोक्यूशन कॉन्टेस्ट में. सो दिस वाज माय फर्स्ट पोएम that I read on stage, and from here there was no looking back. The dream of becoming an actor, dream of being on a stage became quite intense. And it's a beautiful, beautiful poem written by him, such a great poet. Somebody has died in his family and he's written this. जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था, माना वो बेहद प्यारा था, वो डूब गया तो डूब गया. अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, जो छूट गए फिर कहाँ मिले, जो छूट गए फिर कहाँ मिले. पर बोलो टूटे तारों पर, कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई. जीवन में वो था एक कुसुम, कुसुम मतलब फूल. जीवन में था वो एक कुसुम, थे उस पर नित्य निछावर तुम, वो सूख गया तो सूख गया. मधुवन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां, मुरझाई कितनी वल्लरियां, जो मुरझाई फर कहाँ खिली. पर बोलो सूखे फूलों पर, कब मधुवन शोर मचाता है, जो बीत गई सो बात गई. वाह मनोज जी, तो दैट इज फैंटास्टिक. एंड अगर आपका आदेश हो तो मैं अब चूंकि एक कवि महोदय यहाँ पे हैं, तो एक कविता ये पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. No, I have also come prepared to select a poem, so there is no spontaneity in this. We thought we'll end the session because I realized that why इनका और मेरा कनेक्शन बहुत आसानी से हो गया. और मैं कभी सोचता हूँ कि कहीं deep down there is certain things which resonate. That's why it is. So both of us love poetry. Our love for poetry is there, and love for life and love for Uttarakhand and Pahad, which is there both of us. So ये कविता है, उसका छोटा हिस्सा मैं सुना रहा हूँ. ये एक्चुअली मैंने आमिर ने जब शो किया था जो सत्यमेव जयते, उसका ये एंड था उसका, ये कि कैसे हम चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, और आपके लिए ये बहुत एप्ट है, और आप जो करते हैं और जैसे करते हैं. बंजर धरती के सीने पर, बंजर धरती के सीने पर पैर पटक के नन्हा अंकुर, एक हरी सी जिद पर उतरे मुमकिन है. आप सोचिए कि डेजर्ट में एक पत्ता खिला हुआ है, बंजर धरती के सीने पर पैर पटक के नन्हा अंकुर, एक हरी सी जिद पर उतरे मुमकिन है. सूरज मुट्ठी के अंदर हो
और दरारों से उंगली की छलक रोशनी फर्श पे बिखरे मुमकिन है। रात अंधेरी किसी सड़क पर, रात अंधेरी किसी सड़क पर एक लैंप के नीचे कोई सपनों के पन्ने पलटाए और तकदीर पे हंसता जाए मुमकिन है। रात अंधेरी किसी सड़क पर एक लैंप के नीचे कोई सपनों के पन्ने पलटाए और तकदीर पे हंसता जाए मुमकिन है। एक मासूम सा कागज लेकर, एक मासूम सा कागज लेकर बना के कश्ती अरमानों की एक सफर पे चलते जाना मुमकिन है। रस्सी बांधें और सब खींचें, रस्सी बांधें और सब खींचें, आसमान को जमीन पे लाना मुमकिन है। हाथ बढ़ाना बादल छूना, इमेज देखिए, हाथ बढ़ाना बादल छूना और निचोड़ के एक बादल से होंठ पिघाना मुमकिन है। एक सच्चे से सुर की उंगली थाम के बढ़ना और नवेली सरगम गाना मुमकिन है। बीचों बीच हथेली के एक, जो आप करते हैं, बीचों बीच हथेली के एक नारंगी अंगारा रखना, रूह तलक फिर सुलगते जाना मुमकिन है। आने वाले कल की आहट दूर से सुनना और दरवाजे खोल के रखना, राह सजाना मुमकिन है। चांद पे जाकर, चांद पे जाकर बुढ़िया अम्मा का चेहरा हाथों में लेकर, कहते हैं ना चांद पे बुढ़िया सूत कात रही, पर कभी सोचा कि उस बुढ़िया का भी तो कोई दर्द हो सकता है? कि चांद पे जाकर बुढ़िया अम्मा का चेहरा हाथों में लेकर दर्द पूछना मुमकिन है। झील में जाकर उसके दिल की गहराई से खामोशी की वजह पूछना मुमकिन है। एक दीपक का तूफानों से आओ खेलें, एक दीपक का तूफानों से आओ खेलें कहकर मस्ती में लहराना मुमकिन है। आंख हजारों पर एक सपना मुमकिन है, प्यास हजारों पर एक बारिश मुमकिन है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। On that beautiful note, one more round of applause for Manoj Bajpayee. Ladies and gentlemen, thank you. Thank you very much. Really love you all. Thank you, a big thank you to Mr. Manoj Bajpayee and of course to Mr. Prasoon Joshi as well. Ladies and gentlemen, sir, after all, as the chairman of McCann World Group Asia Pacific, CEO and CCO of McCann World Group India, thank you for coming and giving us your time. Sir, if you can just stay back, just 1 second. Yes, please, if you can continue joining us, because we would like to please call upon Mr. Prashant Kumar, President of the Advertising Agencies Association of India and the CEO of South Asia Group M, to come and join us to felicitate Mr. Manoj Bajpayee. Thank you. Can I also request my colleague in action, Rana Barua, President of Ad Club Mumbai, to be part of this? Thank you.